free loans and moratoriums and whatever they have declared, one by one, I will go and सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। साहू सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो 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 restart the, is it okay? Hello? हेलो आपकी आवाज बराबर नहीं आ पा रही है। हेलो 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 हाँ सर अभी आवाज आ रही है। हेलो इज इट हाँ अभी क्लियर है? हाँ सर अभी क्लियर है। अभी क्लियर। अच्छा so and the decision taken by the government of India that emergency credit line to be given to the businesses and MSME people through banks and NBFCs, and that is up to 20% of the entire outstanding credit as on 29th February 2020. Please try to understand what is the juggleries and what is the technical they have put. Please try to understand. It means that the borrowers with up to rupees 25 crore outstanding and rupees 100 crore turnover, those who are having the outstanding up to 29th February 2020, they can be given 20% that credit line on and above to the outstanding, so that they can easily purchase their raw material and they can pay their salaries to the employees and restart their business smoothly. And those loans that will be provided to these entrepreneurs, this will be a four-year tenure, and for a first year the moratorium period is there, and they don't have words, and the interest to be kept, and 100% guarantee coverage to be covered by the banks and the NBFCs on principal as well as on the interest. It means the borrower, those who are साहू सर आवाज नहीं आ रही availing आपकी। 20% out 29th February 2020, they will not pay any moratorium or guarantee. Coverage will be covered under the scheme. And ये सिलसिला में ये जो 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स दिया जाएगा, इसमें प्रेडिक्टेड है दे 45 लाख यूनिट्स they can resume their businesses actively and safeguard their jobs smoothly. Second, अभी जो काफी इंडस्ट्रीज और काफी एमएसएमईज जो स्ट्रेस में है, जो हम पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट था, दीज यूनिट्स आर सिक यूनिट्स, sick and they can restart their business and they can continue their business while there will be providing the handholding support. For that purpose, Government of India is providing that a 20,000 crore subordinated debt for stressed MSMEs, and in the form of that equity support they will be provided. And the Government of India will facilitate with the provision of 20,000 crore as a subordinated debt, and estimating that if we can provide the handholding support to the stressed and NPA units, around 2 lakh MSMEs are likely to be benefited under this provision. And the Government of India again will provide a support of 4,000 crores of rupees to the CGTMSE, Credit Guarantee Trusts for Micro and Small Enterprises. It is also a collateral free on and above whatever the declaration earlier before that COVID or this special package, that will continue.
In addition to that, this 4,000 crore will be added on under CGTMSE. Those who are interested, they can grab the opportunity. They can apply to their concerned banks for collateral free loan. And under this CGTMSE, they will provide the partial credit guarantee support to the banks. And the promoters of the MSME will be given debt by banks, which will then be infused by promoter as equity to that unit. Next, that is the 50,000 crore equity infusion for MSMEs through fund of funds. इसको थोड़ा समझिए. ये एक्चुअली जो MSME जो इक्विटी शॉर्टेज करते हैं, MSMEs those who are facing the equity shortage, they will be provided the handholding support. They will be provided the support for this mechanism. And this is a corpus of 10,000 crore will be set up by the government of India. This is a fund of funds, and that will be provide equity funding for MSMEs with growth potentiality and viability. And a fund of funds will be operated through a mother fund and a few daughter funds, that is the branches, those who will be accumulated, and this will be more clear when the government of India will issue the guideline. Then the fund structure will help a leverage of 50,000 crore of funds at a daughter funds level, and it will help to expand MSME size as well as the capacity. And this will encourage the MSMEs to get listed on main board and stock exchanges. So this is regarding in addition to the available schemes. जो छोटा छोटा स्कीम हमारा है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बोलिए, या CGTMSE बोलिए, या CLCSS क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जो भी है हमारा 51 सब सेक्टर्स आइडेंटिफाइड है, इसका साथ साथ ये. हाँ जी, साहब का स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है. मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर. Is it okay? नहीं सर, अभी तक नहीं, डिस्प्ले नहीं हुआ है. अभी तक नहीं दिखाई दे रहा. अरे बाबूनी, now is it visible? No sir. Hello? No sir. It is not visible. No sir, not. ये क्यों फोटो प्लीज जॉइन इन असिस्टेंट. हाँ हाँ असलफ. Now it is visible? नहीं सर, अभी तक नहीं आया है. ठीक है. Yes, it is visible. Okay, thank you. Hello. सर आप दिख रहे हैं, आपका सर, प्रेजेंटेशन स्क्रीन नहीं नहीं दिख रही दिख है. रहा है. मेरा प्रेजेंटेशन नहीं है. अच्छा, ऑडियंस विजिबल करके बोल रही है, तो ऑडियंस को दिखाई दे रहा है, शायद हम लोगों को एज अ पैनलिस्ट हमको नहीं दिखाई दे रहा है सर. राइट 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 राइट. यस वो यस. बोल रहे हैं यू आर विजिबल सर, इट इज विजिबल टू अस. कोई बोल रहे हैं, पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं. ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. तो अभी ये जो पैकेज जो फाइनेंस के बारे में मैंने बताया, एक्चुअली इन एडिशन टू आवर अवेलेबल स्कीम्स एंड अदर थिंग्स, so this is the additional boost and doses provided by the government of India, and this will definitely boost to the
problems faced by our MSMEs, and they can help and get the assistance with these packages. And the most important thing is that now they have introduced to the definition they have changed. The Government of India is now taking into consideration a long pending issues that changing of the definition as per the world standard. Earlier we are having that investment criteria, and now Government of India has decided, in addition to the investment criteria, the turnover criteria has been introduced with this investment criteria. साहू सर, अगर आप हिंदी में बात कर पाए सर. मैं बीच में हिंदी में बोलूंगा, कोई मेरा हाँ, एक्चुअली हिंदी में मेरा फ्लुएंसी नहीं है. ओके सर, ओके सर. तो ऑडियंस से काफी रिक्वेस्ट आ रहा था. ओके सर. अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ. अगर कोई गलती हो गया तो हिंदी में थोड़ा सुधार कर लीजिए. हाँ सर, कोई बात नहीं सर. ओके सर. अच्छा, ये जो अभी डेफिनेशन का जो हमारा बात चल रहा था, ये डेफिनेशन का ये लॉन्ग ड्यू था और काफी लोगों का और एसोसिएशन एंटरप्रेन्योर्स का काफी डिमांड था जो ये डेफिनेशन जो एमएसएमई का है, ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं होकर ये टर्नओवर क्राइटेरिया होना चाहिए. And accordingly, during this declaration and this package by the Honorable Finance Minister, they have taken into consideration of a turnover criteria along with the investment criteria. अभी हमारा ऑनरेबल जो एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने कुछ सुधार किया है. आप शायद 19th का उनका जो मैसेज आया था, मैं बताऊंगा आपको. पहले था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दो हिस्सा में था और अलग अलग था. वो माइक्रो का डेफिनेशन 25 लाख तक, स्मॉल का 5 करोड़ तक, मीडियम का 10 करोड़. प्रेजेंटेशन अगर है तो दिख नहीं रहा है अभी. नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ. ठीक है सर, ठीक है. तो ये सर्विसेज जो था, हमारा इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक था और स्मॉल का 2 करोड़ तक था और मीडियम 5 करोड़ तक. अभी इनको क्लब कर दिया है. Manufacturing and services will be not treated separately. Whatever the definition will be applicable, it is applicable for both manufacturing and services categories. And ये जो definition declare किए हैं, ये माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ and turnover up to rupees 5 crore. ये एंड में कुछ गड़बड़ है, तो ये इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर रुपीज 5 करोड़, इसी में थोड़ा सा दुविधा है. तो हमारा ऑनरेबल जो मिनिस्टर ने, एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने इसको एंड का बदल में और कर देते हैं. और करने के लिए ये एक्चुअली हमको सुझाव दिया है. अभी ये रिटन ऑर्डर में नहीं है. तो इसका मतलब ये होगा, तो माइक्रो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ होगा, और स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ होगा और टर्नओवर 50 करोड़ होगा, और मीडियम में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ होगा और टर्नओवर 100 करोड़ होगा. तो ये टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट न्यू डेफिनेशन का हिसाब से चलेगा. बट इसका जो एनफोर्समेंट, जो गाइडलाइंस है, जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, अभी शायद ये विद इन 1 वीक ये आ ही जाएगा. एंड इट विल बी मोर इजियर हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड हाउ टू अडॉप्ट दिस डेफिनेशन. इट विल हेल्पफुल टू आवर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स एंड आल्सो. नहीं तो नंबर शेयर करोगे तो टाइम जाएगा, कर दो ना. अच्छा, और हमारा और एक बात आया, जो हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी या जो प्रोक्योरमेंट हमारा हो रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, जो भी जगह में हमारा एमएसएमई लोगों को जो बेनिफिट मिलता है, दे आर सप्लाइंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज. इसका पहले फॉरेन कंपनीज दे कुड आल्सो बी अवेल्ड सच बेनिफिट्स. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्लोबल टेंडर का डिसअलाउ कर दिया. जो 200 करोड़ तक जो है ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़. In order to boost and support the domestic industries, these foreign companies will be disallowed. It means
that the benefit will be percolated and they can avail the benefit by the domestic industries. Indian MSMEs and other companies have often faced unfair competition from foreign companies. Therefore, global tenders will be disallowed in government procurement tenders up to rupees 200 crores. And necessary amendments, whatever it may be, as per the general financial, will be declared and to be enforced, and it will be shortly to come. And this will help to the step towards for the self-reliant India, that Atmanirbharshil Bharat, to support Make in India concept. And this will definitely increase and to boost the MSMEs for their businesses and their transactions. अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई जो भी गाइडलाइन आ रहा है, अभी प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर भी किया था, जो फैक्ट्री लेवल पे जो वर्कर्स है उनको पैसा दिया जाए, सैलरी दिया जाए। आपका महाराष्ट्र में हो चाहे ऑल इंडिया में जो भी में है, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, काफी लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट केस भी हुआ है, एंड दे हैव डिनाइड दैट व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन and we can manage 1 month, that during March month they have managed, but thereafter they could not manage, and Supreme Court has denied, no, there will be no such system when there will be no work, there will be no production. You might have knowing, you might have come across with this situation, Supreme Court deny कर दिया है। तो इसीलिए हमारा ये जो स्टिमुलस पैकेज आया है वर्किंग कैपिटल और जो टेंडर भी हो प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग का है, और जो प्रोक्योरमेंट का बारे में बोल रहे थे, हमारा एक सिस्टम है जो वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे आपका रीजनल ट्रेड फेयर हो, नेशनल ट्रेड फेयर हो, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, वो सब जगह में ऑल इंडिया में चल रहा था। हम लोग एमएसएमई डीआई एंड अदर स्टेक होल्डर्स वी हैव ऑर्गेनाइज्ड फॉर B2B एंड B2C पर्पस के लिए। इसका साथ साथ है हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता था, हमारा जो एक्सपोर्टर्स एंड दोज हु आर एक्सपोर्टिंग और दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बी एक्सपोर्ट, उनको लेके हम ट्रेड फेयर भी पार्टिसिपेशन भी कर रहे थे। इसीलिए आपको जानकारी होगा, हमारा एक स्कीम है, हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है, जिसका साथ साथ कोई भी एक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मेंबर 10 लोग होंगे तो पार्टिसिपेट करने के लिए जा सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस, दैट इज पर हेड, दैट कैप्स इज 2.25 लाख टुवर्ड्स इकोनॉमी क्लास में एयरफेयर इकोनॉमी क्लास चार्जेस एंड योर स्टॉल चार्जेस फॉर द पार्टिसिपेशन इन दैट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो अभी ये बात आता है, जो अभी हमारा जो नेबरिंग कंट्री जो चाइना है, और भारत सरकार ने जो चाहता है इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट दैट कॉम्पिटिटिवनेस एंड टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स, हमारा अभी ये जो नया सेक्रेटरी आए हैं, अभी 1 मई में हमारा सेक्रेटरी ने चाहे अगर छोटा है तो काल लेके बड़ा होगा, और जो स्मॉल साइज है वो उनको कैसे लार्ज में बढ़ोतरी दिया जाए। इसीलिए आप लोगों को जानकारी होगा, हमारा एक चैंपियंस डेस्क पोर्टल खुला है, www.champions.gov.in, और ऑल इंडिया में 65 सेंटर्स जो हमारा एमएसएमई डीआई और ब्रांच एमएसएमई डीआई, कोई जगह में एनएसआईसी में है, कोई जगह में केवीआईसी में है, ये सब सेंटर खुला गया है। अगर आप लॉग इन करेंगे वो चैंपियंस सेंटर को www.champions.gov.in, इसमें आपको जानकारी मिलेगा। ये जो पोर्टल खुला गया है ये खास तौर से एक्चुअली इट इज मेंट फॉर द इश्यूज, द ग्रीवेंसेस, द कंसर्न्स ऑफ MSMEs. They can upload, they can put their grievances, and how best the MSMEs we can address such issues, and at how fast we can address such issues. And उसमें भी है कि ब्लॉग है, जो आइटम्स अभी का समय का हिसाब से रिक्वायरमेंट है, जो मेडिकल आइटम्स, जो मेडिकल ऑक्सिलरीज, जो मास्क बोलिए
या पीपीई बोलिए, या सैनिटाइजर बोलिए, आपका जो आईसीयू बेड बोलिए, वेंटिलेटर बोलिए, वो कुछ आइटम्स हमारा आइडेंटिफिकेशन में है. एंड दीज आइटम्स आर वेरी वेरी वाइटल, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, पर्टिकुलरली 6 महीना 1 साल का नहीं है. इट इज, यू कैन सी, दिस विल continue for 5 years, 10 years, or forever also, because these medical items and these health products, that will continue. You can explore the possibilities such items, and you can see if you are having that capability, and if you are having that desire, that you can manufacture such products in your areas. And you can also disseminate such information to other people, those you can go ahead with this. So I have received one message that running of shortage of time. So this is in a nutshell that the government of India is taking the initiative for addressing such issues in the alarming situation. And I hope that you are all intellectuals, you are all ambassadors for the MSMEs. You are very proactively acting and reacting on behalf of the MSMEs. And your association, your stakeholders, cluster people, those who are interested to do such things, kindly do such things, and we are here to support you, provide you, and providing information. And any issue you can now put in that champions desk portal. You can open, there will be no password, there will be no login ID. When you will click that www.champions.gov.in, you can find it and you can upload your grievance. So thank you very much, and I convey my sincere thanks to Gems and Jewelry Export Promotion Council for organizing this web seminar for the their friends MSME entrepreneurs. Thank you very much. सर अभी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें? हाँ जी, मैंने तो 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है. अच्छा सर, शैलेंद्र जी, सर आपसे निवेदन है कि क्वेश्चन आंसर सेशन में देखिए आप क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन देखते हुए आप आंसर एक एक करके प्लीज देते चले. हाँ, देख रहे हैं सर, भी देख रहे हैं, देखते हैं. हाँ सर, तो ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक एक क्वेश्चंस के ऊपर अपना आंसर भी देना शुरू कर दें, तो आप अपने प्रश्नों का जवाब लेके ही जाएं. एक क्वेश्चन आया है, मैं जवाब देता हूँ. हेलो, बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए. To fasten up with the new trends in global market, product planning and development is highly recommended. It is necessary to establish design development centers to bring new futuristic designs in order to compete internationally. The price of gold, silver and diamonds has been sudden increase in the last few years, which has changed in buying pattern of consumers. So these things are the all type of, not the queries, it is all things are suggestions. So thank you very much to those who have raised this question. But one thing that to establish a design development centers, and this is my suggestions, if you can group up 20 entrepreneurs minimum or more than that, why you are not thinking to set up one cluster development, that is CFC, Common Facility Center. And in that Common Facility Center, Government of India is providing 20 crores of rupees, out of which 70% will be borne by Government of India as a grant. So think in this way, so that the design center, what is the machineries, the requirement you are interested, you can install with that, and you can also face the challenges or competitiveness, whatever it may be, you can do that. Sir, who is it, who to contact to startups please in Delhi? Delhi, in because the startup and stand up for these. हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है. स्टैंड अप के लिए स्टैंड अप मित्र पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, और अदरवाइज और स्टार्टअप के लिए ये दे हैव टू अप्रोच टू डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, DIPP वेबसाइट. ओके, आप सुन पा रहे हैं? क्वेश्चन हो था, आवाज आ रहा है? सर आपकी आवाज आ रही है. ओके. सर एक क्वेश्चन ये था कि किसी के पास में 9 करोड़ की मशीनरी है और 400 करोड़ टर्नओवर है, हाँ, तो क्या वो MSME में फॉल होता है? तो अभी तो टर्नओवर 100 से ऊपर हो जाएगा तो नहीं आएगा ना सर. ओके.
हेलो, पांडे साहब और कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा मुझे। ओके, दिस उद्योगाधार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन डायरेक्टली कॉल अस, कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे उसको रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर मैंने फ्री वीडियोज अपलोड किए हैं रिकॉर्ड करके, वो देख सकते हैं लोग। हेलो, हेलो, यस सर। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आई एम रेडी इन ट्रेडिंग इन डायमंड ज्वेलरी, तो डायमंड देखिए ट्रेडिंग के नाम से तो नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन है आई एम ऑलरेडी इन ट्रेडिंग इन डायमंड एंड ज्वेलरी, वांट टू मिटिगेट माइग्रेट इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रजिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस अलग, ये नया बिजनेस अलग होगा, दोनों मिक्स नहीं होगा। और है क्वेश्चन, कैन वी रजिस्टर ऑन वेबसाइट, वाट क्या मतलब है टू बी, तो udogadhar.gov.in ये वेबसाइट है MSME रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि फ्री है, आप खुद ही कर सकते हैं इसमें। और 32 जो कोड नंबर है उसमें आपके बिजनेस आते हैं जेम्सन ज्वेलरी के, ये सारे चाहे तो नोट कर लें। एक बिजनेस है रेंटिंग ऑफ ज्वेलरी, वो 77293 NIC कोड पे आता है। एक है रेंटिंग एंड अल्टरेशन ऑफ ज्वेलरी 95293 पे आता है वो, और दूसरा है 32 पे सारे मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस आते हैं, 3212 एंड 3211। तो 3212 जो NIC कोड है वो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग है, एंड 3211 इमिटेशन ज्वेलरी और उससे रिलेटेड है। तो NIC कोड की वेबसाइट में जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं, उद्योग आधार में जाके NIC कोड देख करके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। हेलो, पांडे जी। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। नेक्स्ट वाला कौन सा है? अभी यहाँ पे एक गोयंका जी करके हैं जिन्होंने 2 क्वेरीज अप्लाइड इन P&MS स्कीम फॉर जयपुर ज्वेलरी शो फॉर December ऑनलाइन बाय my.msme.gov.in, हाँ ठीक but है। no update. Went to bank from last 2 years for CGTMSE scheme, but bank doesn't support. नहीं देखिए, कुछ केस में कहते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें साहू सर जरा बताइए आप इनको सर। हाँ, ये जो CGTMSE में जो बैंक में ये बात बोल रहे हैं, ये शायद वो बैंक वाला कोई मॉर्गेज मांगता होगा, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता होगा। इसका ये तो नहीं है वो मना करता है और वो स्कीम में अवेलेबल नहीं है। कोई और कारण अगर से मना करता होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। अगर मना करता है, हमारा जो राजस्थान जयपुर में DI ऑफिस है, वो DI ऑफिस को आप एक रिटिन कंप्लेन दीजिए। और ये जो मैंने चैंपियंस डेस्क में बताया ना, वो चैंपियंस डेस्क में वो बैंक का नाम का साथ उनका लिख के भेजिए, आपको 2 दिन में रिप्लाई मिलेगा, मैक्सिमम बाय 3 डेज। मृणाली जी, आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिया करिए, क्योंकि हम ये जंप ऊपर हो रहा है तो हमको समझ नहीं आता कौन सा क्वेश्चन है। क्लस्टर के लिए सर कुछ पूछना है, तो मोस्टली सर काफी लोगों का ये है, क्वेश्चंस हमारे पास भी आते हैं कि क्लस्टर्स के लिए आपके सुझाव, और थोड़ा सा लाइक इलैबोरेट करके बता दे। मैं अभी तो क्लस्टर के बारे में बता रहा था। इज इट ऑडिएबल टू एवरीबॉडी? यस सर, हमको सुनाई दे रहा है सर। ओके, तो क्लस्टर के बारे में मैं बता रहा था। अभी नया गाइडलाइन पे आ गया हमारा। अभी ये नया गाइडलाइन में जो 15 करोड़ पहले था, अभी 20 करोड़ का अभी प्रोविजन हो गया है, और 20 करोड़ से 70% विल बी पोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए ग्रांट, नॉट ए लोन, इट इज ए ग्रांट, बट दैट विल बी प्रोवाइडेड फॉर ओनली फॉर द प्लांट एंड मशीनरी। जो भी क्लस्टर आप बनाने के लिए सोचते हैं, उनका एक पहले तो एक रिपोर्ट, उनको हम बोलते हैं डायग्नोसिस रिपोर्ट, आप बनाइए। हाँ, तो लोकल आपका जो MSME DI है, उनका साथ बात
बातचीत करिए, हमारा एक क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होगा, वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा। एंड ये जो हमारा डिटेल गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन हमारा अवेलेबल है हमारा www.dcmsme.gov.in में, ये भी आप देख सकते हैं। अगर ये विस्तार से हम बोल रहे हैं, मैं अभी 2-3 आपको बोल देता हूँ। ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर में 70% तो दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है हमारा, सपोज इंडस्ट्रियल जो स्टेट से है हमारा, कुछ रोड, कुछ इलेक्ट्रिक कनेक्शन, कुछ ड्रेनेज सिस्टम ये नहीं है, इसीलिए भारत सरकार ने 10 करोड़ का एक पैकेज दिया है, जिसका अंदर से 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा और 40% विल बी बोर्न बाय दैट स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी। एंड एक मार्केटिंग हब्स और एग्जीबिशन सेंटर के लिए भी प्रोविजन रखा गया नया गाइडलाइन में। इसका अंतर्गत भी वो भी 10 करोड़ का प्रोविजन है। 60% विल बी बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 40% विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसका साथ साथ जो सपोर्ट टू स्टेट इनोवेटिव क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका प्रोविजन हमारा सीएफसी का अंतर्गत, जो स्टेट गवर्नमेंट जो सीएफसी करना चाहते हैं या इनोवेटिव सेंटर करना चाहते हैं, भारत सरकार से उनको 5 करोड़ का प्रोविजन भी है। एंड आउट ऑफ दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी प्रोवाइडेड 90% and only 10% will be provided by the state government। इसका यही 2-3 में पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मैं बता देता हूँ। पहले तो 20 लोगों का एक मेंबरशिप होना चाहिए, जिसका उद्योग आधार मेमोरेंडम जरूरी होगा, और 20 से ज्यादा होगा तो बेहतर है। और एक वो जो प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट बनेगा, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, फिर इसका डीपीआर बनेगा, डीपीआर अप्राइजल होगा, और डिफरेंट स्टेजेस में उनको हम MSME-DI को आप अप्लाई कीजिए। MSME-DI विल फॉरवर्ड दैट रिपोर्ट ऑनलाइन टू द डेवलपमेंट कमीशन ऑफिस। उसका टेक्निकल एजेंसी बैठता है हमारे डेवलपमेंट कमीशन का चेयरमैन, और वो आपको बता देंगे आपको क्या क्या जरूरी है और CFC में क्या होगा, आपको क्या आप व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डेवलप इन दैट CFC, उसका डिटेल्ड और स्पेसिफिक फोकस रिपोर्ट बनना चाहिए। आप थोड़ा हमारा ये dcmsme.gov.in में जाइए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो ऑर्डर है 11 अक्टूबर 2019 में, आप उनको देखिए, 2 पेज का है और डिटेल भी उसका साथ साथ है। और आपको थोड़ा समझिए, नहीं तो हमारा लोकल MSME-DI जहाँ पर आपका जो राज्य या जो जगह आपका है उनका साथ कॉन्टेक्ट। सर दूसरा एक क्वेश्चन है जिसमें www.champions.gov.in इज इट राइट करके पूछा है, तो ये क्या वेबसाइट है और क्या आप बताओ। अभी मैं बता रहा था ना, अभी हमारा जो अभी जो सेक्रेटरी ने नया सेक्रेटरी आया है, ऑनलाइन दिखा देता हूँ। हाँ ऑनलाइन में दिखाइए शैलेंद्र जी। सर ये मुझे वो करिए, मैं ऑनलाइन दिखा देता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। सर आप तक हमारी आवाज आ रही है? दिख रहा है अभी ऑनलाइन? जी आपका शेयरिंग स्क्रीन करके, हाँ दिख रहा है सर। ओके, मैं यहाँ पे आपको चैंपियन जो है गूगल में डालता हूँ, आप भी देखिए उसको। चैंपियंस चैंपियंस MSME ही डाल दीजिए, आ जाएगा पोर्टल। ठीक है, चैंपियन MSME.gov.in, ठीक है, ये पोर्टल है। सर दिख रहा है साहू साहब? जी जी बिल्कुल दिख रहा है। ये पोर्टल है जिसकी साहू साहब बात कर रहे थे। तो यू कैन पुट हियर द ग्रीवेंस योर आइडियाज। जब करेंगे तो जो मैं आइडिया वाली वो वेबसाइट दिखा रहा था, अभी उस पर स्विचवेयर हो जाएगा ये। तो you can put your ideas, you can see different ministries जो है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री स्कीम आल्सो, ये ऑल दिस थिंग्स इज अवेलेबल। ये देखिए, आप जिस मिनिस्ट्री का देखना चाहें, जिस प्रदेश का देखना चाहें, यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रल स्कीम देख सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया और चैंपियन दो हमारी नया इनिशिएटिव है, सो दैट वी कैन रीच द मैक्सिमम पीपल। ये देखिए, किसी भी जो है डिपार्टमेंट की आप स्कीम देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं चैंपियन पे आता हूँ। ये चैंपियन वो वेबसाइट है जो कि पब्लिक के ग्रीवेंस एड्रेसल के लिए सरकार ने बनाया है। वहाँ पे बहुत सी नई चीज़ें जो आई हैं वो सब दिया हुआ है।
तो किसी भी ये जो ऑफिशियल से ग्रीवांसेस से रजिस्टर ग्रीवांसेस से दिखा दीजिए, ये ओपन है। हाँ ये हाँ सर इसका, खोलूं, हाँ ये, हाँ हाँ हाँ, तो ये इसमें से देखिए। ये है, यहाँ पे अपना आप जो है एसोसिएशन है, आप किस तरह इंडिविजुअल हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, क्या है, ये टाइप सेलेक्ट करिए और चुपचाप यहाँ पे आप जो चाहते हो स्टेट सेलेक्ट करिए, आपका जो भी स्टेट है, फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका ईमेल आईडी है। तो अभी जो हमारा 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो ऑफिस में लोग बैठे हैं, वो आज जो हमारा पूरा निदेशक महोदय हैं, उनके गाइडेंस में, जो सीनियर ऑफिसर के गाइडेंस में आपको उसकी जानकारी और आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है सर। ये क्या आपका मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, फिर ओटीपी के बाद हाँ आपका वो कॉन्सर्न आपका जो है उसको डालना है। हाँ ये चीज है। ठीक है, ओके सर, और क्या नेक्स्ट दिखाएं? क्वेश्चन। और जो साहू सर बोल रहे थे क्लस्टर स्कीम, वो दिखा दूं? हाँ बिल्कुल सर। ये देखिए यहाँ पे आप आइए mymsme.gov.in, इस पे आएंगे जो साहू साहब बता रहे थे। तो इसमें देखिए हमारे सारे टैब, सारा स्कीम हमने दिया है। आप सिंपली यहाँ पे आइए, देखिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे क्लिक करिए, सभी को दिखेगा, और यहाँ पे आइए क्लिक टू अप्लाई। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, और एट द सेम मोमेंट सारा स्कीम का पूरा गाइडलाइन ये नई वेबसाइट में स्विच ओवर करेगा। अब देखिए आप, इसकी बड़ा अच्छी सी विशेषता ये है, यहाँ पे CFC DPR फॉर्मेट पड़ा हुआ है आपका। जो है आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है अपने क्लस्टर की, वो बना सकते हैं। और कंप्लायंट चार्ट फॉर IID पड़ा हुआ है, DPR अपग्रेडेशन, चेकलिस्ट, DPR, ये सारे वर्ड फॉर्मेट में है, यानी कि आपको सीधे कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब डाउनलोड करेंगे तो वर्ड में ही आएगा। पूरा स्कीम की जो नई गाइडलाइन है वो भी यहाँ पे दी हुई है, जो अभी हमारे साहू साहब बता रहे थे। चेक स्टेटस, तो यहाँ पे सारी चीज अवेलेबल है ऑनलाइन। तो कोई भी जो है, जैसे साहू सर ने बताया, ग्रुप ऑफ पीपुल आते हैं, जेम ज्वेलरी का क्लस्टर किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी करना है, दे कैन अप्लाई एंड दे कैन गेट अप्रूवल। उसमें आपको एक साथ आके करना पड़ेगा, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन विद मस्ट। ठीक है, ओके सर। और वो आपका मैं दिखा दूं कि आपके लोगों को उद्योग आधार कैसे रजिस्टर करना है जेम्स एंड ज्वेलरी का। हाँ जी सर, हाँ हाँ सर, हाँ सर। हमारी आवाज आ रही है? रुकिए एक सेकंड। हाँ सर आ रही है लेकिन आपकी पांडे सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, लो आ रही है। हमारा खाली एक क्वेश्चन था जो ऑडियंस से आ रहा है, तो हम जानना चाह रहे थे जो हमारे जेम एंड ज्वेलरी के क्लस्टर्स हैं उनको बैंक फाइनेंस नहीं मिल पाता है, उसमें डिपार्टमेंट किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है? उस साहू सर वो बताइए जरा इनको। ये जो बैंक का बारे में बोल रहे हैं, ये एक्चुअली दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ बैंकर्स। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन बताया, ये 3 लाख रुपीज, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये जो भी बताया मैंने, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी प्रोविजन रखा है। एंड दिस इज एक्चुअली, आप एक एंटरप्रेन्योर होंगे तो आप खास तौर से आप समझ जाओगे, ये जितना पैकेज बना हो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू बैंक्स, एंड बैंक्स इज हैविंग द प्रेरोगेटिव टू गिव द लोन और नॉट टू गिव द लोन। बट नॉट टू गिव द लोन मीन्स हमारा एक मैकेनिज्म है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी मीटिंग है, RBI का एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग में है। अगर आप एप्लीकेशन डालोगे और वो रिजेक्शन कर देते हैं, ये नहीं देते हैं, उनको हम पूछते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री, हमारा MSME DI के मेंबर होता है, हम पूछते हैं इनको क्यों रिजेक्शन किया गया, what is the reason behind it that you have rejected, what is the reason, why you have not entertained, ये प्रोविजन रखा गया। बट ये रिटीन में हमारा पास होना चाहिए। आप जो बैंक का आपको रिजेक्शन किया है या नहीं दे रहा है, इसका रीजन क्या है, हमारा पास एक रिटीन होना चाहिए। सो इट विल बी a strong point for us that we can ask to that bank or to that branch that why you are not entertaining to providing facilities for the entrepreneur। इसमें सर जेम्स एंड ज्वेलरी प्रमोशन एसोसिएशन के माध्यम से और बैंक हमारे नियरेस्ट जो ऑफिस उसमें आएंगे तो जरूर कोई सोल्यूशन इसका निकलेगा। साहू सर, मैं इनको उद्योग आधार जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर के लोगों को कैसे रजिस्टर करना है, हाँ, ये तो ये एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट में। हाँ ये देखिए, इसमें सब चीज जो है ठीक है, उसके हिसाब से आपको डालना है, आपका आधार नंबर, ये सब चीज। मैं मेन उसमें आऊंगा, जो NIC कोड इनको मिलता नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करिए, और 32 नंबर पे आप यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करिए। 32 नंबर जो चीज है, बिजनेसेस हैं, वो जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड है। ये देखिए अदर मैन्युफैक्चरिंग में आता है,
ये सब दिख रहा है। इसमें देखिए दो तरह के कोड हैं, पहला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी रिलेटेड आर्टिकल्स, अगर मैं, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी एंड रिलेटेड आर्टिकल्स। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी एंड रिलेटेड आर्टिकल्स को मैं पहले दिखाता हूँ। इसमें जब आएंगे तो हमारे इतनी तरह के बिजनेस इसमें आते हैं। देखिए पहला है 3211 एनआईसी कोड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी गोल्ड सिल्वर अदर प्रीशियस बेस मेटल एंड मेटल प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स। तो ये ज्वेलरी के लोगों को समझना होगा कि कौन से में उनका बिजनेस फिट होता है। अगला है वर्किंग ऑफ डायमंड एंड अदर प्रीशियस सेमी स्टोन्स इंक्लूडिंग वर्किंग इंडस्ट्रियल क्वालिटी स्टोन्स, ये सारी चीज इसमें आएगी। इसी तरह का भी स्टोन प्रोडक्शन ऑफ वर्कड पर्ल्स यहाँ पे आएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉइन्स इंक्लूडिंग कॉइन्स ऑफ यूज, देखिए शायद जो में नहीं आता होगा, फिर भी अगर कोई कुछ बनाता है तो इसमें आएगा। अदरवाइज अगला आएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल्स गोल्ड सिल्वर एंड प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस मेटल्स ऑफ स्टोन्स, ये सारा आएगा। ठीक, मैं दूसरा इसमें सेलेक्ट करता हूँ 2 नंबर, जिसमें इमिटेशन ज्वेलरी आती है सारी। तो इसमें आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें और कोई एडिशनल तीसरा एनआईसी कोड नहीं दिया है। तो इमिटेशन ज्वेलरी किसी भी तरह का आएगा तो वो इसमें लोग जो है रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने सर्च किया है, जो किया एनआईसी कोड की वेबसाइट में, सर्विस इंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग मेजर और सर्विस जो है माइनर जो है एक्टिविटी, तो उसमें 77 नंबर पे आते हैं हम। तो एक बिजनेस दिखता है मुझे जो शायद किसी को उसमें पसंद हो और वो आगे करके कर सकता है। इसमें ये है कि इसमें देखिए जो है, हाँ इसमें देखिए 729 रेंटिंग एंड लीजिंग। तो इस तरह का कोई अगर बिजनेस हो सकता है, आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये भी करें तो 8 लगभग 10 एनआईसी कोड 10 एक्टिविटी आप उद्योग आधार में रजिस्टर कर पाते हैं। तो इसमें से आप ये भी डाल सकते हैं 77293 सर्विस एक्टिविटी रेंटिंग ऑफ ज्वेलरी, एक ये हो गया। इसी तरह से आता है एक 95 जो कोड है वो भी ज्वेलरी से रिलेटेड है। आप इस पे आएंगे देखेंगे तो 95 दिखेगा आपको। 95 में आएंगे ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ, तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये एक्टिविटी तो आप करते ही हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आप जब रजिस्टर करें तो ये बिजनेस भी अपने उसमें उद्योग आधार में रजिस्टर कर लें, ताकि कल के जो है आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। ये चीज है देखिए, ये रिपेयर ऑफ अल्टरेशन ऑफ ज्वेलरी 95293। तो ये इतने कोड जो मैंने सर्च किए हैं जो अवेलेबल हैं जेम्स एंड ज्वेलरी के लोग इसको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के टाइम डाल सकते हैं। शैलेंद्र जी, मैं एक क्लैरिफिकेशन इधर देता हूँ। जी ये सर। जो उद्योग आधार मेमोरेंडम में है, ये एनआईसी कोड है, ये एक्चुअली आईटीसीएचएस कोड नहीं है। ये हाँ, आईटीसीएचएस कोड एंड एनआईसी कोड थोड़ा सा अंतर है। वो दूसरा होता है सर, एक्सपोर्ट के लिए हाँ, मिलता है। ये जो हमारा ये भी कोड वेबसाइट है। लगेगा, हाँ यहाँ ये पे एनआईसी कोड है, ये अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके ये देखिए, उसको यहाँ पे दिखा उद्योग सकते आधार की वेबसाइट में है सर, ये दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कोई भी जाके देख सकता है और अपना जो बिजनेस है उसको रजिस्टर कर सकता है। और जो एक्सपोर्ट के लिए कोड है वो आप हैं। डीजीएफटी की वेबसाइट है, वहाँ पे दिया हुआ है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वो कोड वहाँ देख सकते हैं। हाँ हाँ। साहू सर, एंड और एक आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं। ये जो उद्योग आधार मेमोरेंडम है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेशन है, हाँ एक प्राइवेट है, ये एक दो का खुला है, ये इसमें मत जाइए। ये कुछ स्टेप्स जाने के बाद वो 1600 पैसा मांगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ ये आप सर, थोड़ा ध्यान इस दीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में है। सर इसमें क्या है, मैं बोलना हाँ चाहूंगा कि जब भी आप गूगल में जाएं, कोई भी उद्यमी आपका जाए, वहाँ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ना डाले, वहाँ उद्योग आधार ही डाले। और जिसमें एक्सटेंशन .gov.in हो उसी वेबसाइट में जाए। नहीं तो हमारा myMSME.gov.in से चले जाइए, या DCMSME की वेबसाइट से चले जाइए, या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की वेबसाइट से वो लिंक ढूंढ लीजिए। वो कहिए तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ओके ओके सर। साहू सर, आवाज आ रही हाँ है सर जी, हमारी? हाँ जी, बताइए बताइए प्लीज। सर हमारे पास में काफी क्वेश्चंस हैं, तो मेरा खाली रिक्वेस्ट यही है कि एक क्वेश्चंस और जो भी सजेशंस आए हम आपसे शेयर करेंगे, और श्योर उसके श्योर। अगर जवाब हमें मिल पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सेशन हमारा अभी क्लोजिंग उस पे पहुंच गया है। तो हाँ हाँ, आपका आप सर बहुत शेयर बहुत कर धन्यवाद। दीजिए। हाँ सर, आपका सर आप बहुत शेयर बहुत कर धन्यवाद। दीजिए। इस क्राइसिस के टाइम पे आपने वहां से कटक से हमारे लिए ज्वाइन किया। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबा समय हमारे साथ देने के लिए। और हम फिर से अपेक्षा रखेंगे कि भविष्य में हमें एक साथ फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। और मैं जो ऑडियंस में जो हमारे लोग आए हैं उनके सजेशंस को मैं मिनिस्ट्री तक पहुंचाऊंगा, और हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि सर कि उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर आपकी तरफ से मिले। बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल। मच हाँ फॉर ऑल हाँ, धन्यवाद। पार्टिसिपेंट्स एंड पैनलिस्ट। वेलकम सर, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम सर, ओके। थैंक यू।
एक है पांडे साहब, ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लॉग आउट हो जाऊं मैं? हाँ सर, अभी तो लॉग आउट हो सकते हैं सर। थैंक यू सो ओके मच। अब पर्सनली कॉल करेंगे आपको। ओके ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सर, साहू साहब थैंक यू सर। थैंक यू। सर ने म्यूट किया क्या? हाँ नहीं सर ने, सर लगता है निकल गए। ओके चलिए ठीक है। सर नमस्कार।